Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear students, from today and onward, we will be doing a quick revision of our midterm syllabus. So let's start. In chapter number 1, we have already studied significant figures in detail. So in this session, we will do a quick review of what significant figures are, what are the rules for determining significant figures. So significant figures are basically reliable digits known with certainty in a given number, in which last digit is uncertain. Significant figures are basically the reliable digits which are known with certainty, जिनके अंदर हमें कोई doubt ना हो. What are the rules for determining significant figures? किसी एक specific value या number के figure के अंदर या number के अंदर हम कैसे significant figures को identify कर सकते हैं, उसके certain rules हैं हमारे पास, वो हमने study किए थे with examples. So all non-zero digits are significant. तमाम जो numbers हैं from 1 to 9 are always significant. Example 64 has 2 significant figures, 542 has 3 significant figures. Cases in which zeros are significant, when zeros are significant. 1 to 9 तो मैंने कहा all numbers, all digits are always significant, but zeros are also significant. So when are they significant? So zeros placed between non-zero digits are always significant. For example, 15.01. So 0 which is here is in between two non-zero, 5 and 1. So this figure has total 4 significant figures including 0. 20002. So these three zeros, all three zeros are in between two non-zero digits. So there are 5 significant figures in this value including all these 3 significant non-zeros. Final zeros to the right of the decimal point are always significant. Final zeros which are at right side of the decimal are always significant. For example, 3.200. So these two zeros here are after this point, decimal point. So these are always significant. So there are 4 significant figures including these zeros. 2.4500. So in this figure the zeros again are after the decimal point. So there are total 5 significant digits in this figure including 2 zeros. Okay, now cases in which zeros are not significant. Zeros relating to the value less than 1 are non-significant. Basically, in our previous slide, we have studied about the trailing zeros which are right after the decimal. But what about the zeros which are before the decimal or before a non-zero number? So these zeros are termed as leading zeros. For example, 0.004, these are the leading zeros which are before decimal and before a non-zero number. So these are always insignificant. So this example has only one significant figure, which is 4 here. 0.0012 has 3 leading zeros and only 2 significant figures are there in this value. Zeros leading to the value greater than 1 are not necessarily significant. There is another rule which is example से समझते हैं इसको कि zeros which are after a non-zero but are before the decimal, so they are considered both significant and insignificant. So according to your syllabus, we do not consider these type of zeros significant. So there is only one significant figure in this value. For example, 6600. So it has 2 significant figures, 6 and 6 in this value. Okay, we have also studied about rounding of data, which means to reduce a value to a desired numbers.
So to reduce a number to the desired significant figures by applying certain rules is called rounding off data. राउंडिंग ऑफ करने के लिए भी हमारे पास किसी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को शॉर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. What are the rules? Rule number 1, if the digits to be dropped is greater than 5, then add 1 to the last digit to be retained and drop all the digits further to the जो डिजिट जितने डिजिट्स आपने रखने हैं और जो डिजिट आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं, इफ़ द डिजिट इज़ ग्रेटर दैन 5, अगर 5 से बड़ा है तो उसको रिमूव करते हुए हम उससे पहले लिखे हुए डिजिट के अंदर 1 की एडिशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5.768 is reduced to 5.77 क्योंकि जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे थे वो 8 था. 8 जब ग्रेटर दैन 5 है तो उसको ड्रॉप करते हुए 6 में 1 की एडिशन हुई तो ये 5.77 हो गया. If the digits to be dropped is less than 5, then simply drop it. No addition of 1. For example, 5.734 is rounded off to 5.73. 4 हमने यहाँ से रिमूव किया है, ड्रॉप करा है, तो यहाँ 4 is less than 5, so there is no addition of 1 in this case. If the digit to be dropped is exactly 5, then उस केस में क्या करते हैं? तो वहाँ दो पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं, एक ऑड के लिए और एक इवन के लिए. So if the digit to be retained even, then just drop the 5. अगर डिजिट जो आप रखना चाह रहे हैं, जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं उससे पहले वाला डिजिट जो है अगर वो आपके पास इवन नंबर है तो there is no addition of 1. For example, 7.865 is rounded off to 7.86. 5 यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, बट जो डिजिट्स हम रख रहे हैं वो 6 है, which is an even number, so there is no addition of 1. 5 was removed. If the digits to be retained is odd, then add 1 to it. तो हम add करते हैं 1. So 6.75 is rounded up to 6.8. 5 रिमूव करना था, इसको यहाँ से हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो 7 जो है वो ऑड नंबर है, तो 5 को हटाते हुए हमने 1 की एडिशन यहाँ की है. ओके, नेक्स्ट जो चीज़ हमने स्टडी की थी वो आपके पास एरर था. एरर आपके पास क्या होता है? बेसिकली एरर ड्यूरिंग कैलकुलेशन जो है आपके पास जो मिस्टेक्स हों किसी भी रीज़न की वजह से वो आपके पास एरर कहलाते हैं आपकी कैलकुलेशन में. इसकी वजह से एरर क्या आ जाने की वजह से जो आपका रिजल्ट्स होते हैं या कैलकुलेशंस होती हैं वो एक्चुअल कैलकुलेशन या एक्चुअल रिजल्ट से फार अवे होती हैं. समटाइम्स इससे कम होती हैं, समटाइम्स इससे ज़्यादा होती हैं. डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू. जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है किसी चीज़ की, उसमें जो भी डिफरेंस आ रहा हो, फ़र्क आ रहा हो आपके ऑब्जर्व में से, ऑब्जर्व वैल्यूज़ में से, रिजल्ट्स में से, तो वो आपके पास एरर की टर्म की कैटेगरी में आ जाती है वो चीज़. क्लासिफिकेशन ऑफ एरर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स, सिस्टमैटिक एरर और डिटर्मिनेंट एरर. रैंडम एरर एंड डिटर्मिनेंट एरर. सिस्टमैटिक एरर is related to system and it is determinant. It can be determined, but random error has no point कि आप उसको कहाँ से कैच करें, so it is indeterminate. इसको डिटरमिन करना मुश्किल होता है. This picture is representing that if there is systematic error in the calculation, then the observed result fluctuates around the true value. But random error की कोई बाउंड्री नहीं है, वो बिल्कुल ही कोई आपकी मीन वैल्यू जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उससे बहुत कभी उसके बहुत करीब आ जाता है, कभी बहुत दूर चला जाता है, कोई स्पेसिफिक उसका पॉइंट नहीं है. सिस्टमैटिक एरर और डिटर्मिनेंट एरर. Errors which can be removed or rectified are considered as systematic error. ये सिस्टम के अंदर यूजुअली होते हैं और आप इनको जो है वो रिमूव कर सकते हैं और उनको जो है वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में से, बिकॉज दे आर डिटर्मिनेंट. कॉजेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर आर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट कोई भी मसला कर रहा हो आपका जिससे आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं. इम्प्रॉपर हैंडल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. अगर आपकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं है इंस्ट्रूमेंट के साथ तो भी आपके पास एरर आ सकता है सिस्टमैटिक. डिफेक्ट्स इन एनालिटिकल मेथड. अगर आप जिस प्रोसेस में आप अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो प्रोसेस ही आपका गलत है तो भी आपके पास सिस्टमैटिक एरर उसमें आएगा. एग्जाम्पल्स. इन टाइट्रेशन, इफ द इंडिकेटर इज नॉट प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड और बियर इज नॉट प्रॉपर्ली वॉश्ड, देन इट कॉजेज सिस्टमैटिक एरर. अगर आपने ड्यूरिंग टाइट्रेशन इंडिकेटर को प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं किया है तो ऑब्वियसली वो एक राइट टाइम पर इंडिकेशन नहीं देगा.
कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन की। इसी तरीके से ड्यूरोट अगर प्रॉपर्ली वॉश नहीं हुई, उसमें कंटामिनेशन है, तो भी आपके पास सिस्टमैटिक एरर आ सकता है। Random error, indeterminate error. Errors which cannot be removed but can be minimized are considered as random error. These errors are usually cannot be removed but can be minimized. इसको हम कम कर सकते हैं, इनके एक्सटेंट को कम कर सकते हैं. They may be positive or negative. Causes क्या है इसकी? It is caused due to some uncertainty in the measuring instrument. इंस्ट्रूमेंट में कोई ऐसी मिस्टेक हो उसकी कैलिब्रेशन में जो इसको आइडेंटिफाई ना कर सके, तो वो आपके पास जो है वो रैंडम एरर देगा हमेशा. Example, in a 50 centimeter cube burette, we can read the burette reading accurately only to a nearest 0.1 centimeter cube. अब फॉर सपोज आपके पास जो burette है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब वाली जिसके ऊपर मार्किंग है, तो अब आप उसके अंदर 0.1 की मार्किंग होती है बिटवीन टू नंबर्स. तो अब आप उसमें रीडिंग जो है वो 5.1 कहेंगे, 5.2 कहेंगे, फॉर सपोज 5.3 कहेंगे. उसके बीच में अगर आपके पास रीडिंग आ रही है तो फिर आप क्या कहेंगे? बिकॉज देयर इज नो मार्किंग फॉर स्मॉलर नंबर्स, तो वहाँ पर आपके पास रैंडम एरर आएगा. तो इसीलिए हम रेप्लिकेट एनालिसिस करते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए. बार बार हम प्रोसीजर रिपीट करते हैं और फिर टोटल का हम एवरेज जो है वो लेकर जो है वो कैलकुलेशन करते हैं ताकि एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाए. ओके, अनदर कॉन्सेप्ट जो हमने स्टडी किया था वो था मोल. मोल बेसिकली आपके पास किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं? मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास. मोल इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से. हमने उसको कैलकुलेट करने का तरीका देखा था कि अगर आप किसी चीज़ का मास आपको गिवन हो, अगर वो कोई एटम है तो हम उसको उसके एटम में मास से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं उसके मोल्स. अगर वो कोई मॉलिक्यूल है तो हम उसको जो भी मास गिवन है उसका उसके मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड करके मोल कैलकुलेट कर सकते हैं. और 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 into 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस और पार्टिकल्स. ओके, नंबर ऑफ एटम्स हमने निकालना सीखे थे. नंबर ऑफ एटम्स किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस मालूम हो और जो आपके पास एवोगाड्रो नंबर है 6.02 into 10⁻23, उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से या फॉर्मूला मास से, तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो आ जाते हैं. फॉर सपोज आपको कोई एक स्पेसिफिक मास दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का और आपसे कहा जाए कि इसके अंदर कितने इसके आइटम्स या मॉलिक्यूल्स हमको कैलकुलेट करें, तो यू कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस. ओके, इसके अलावा हमने स्टिचोमेट्री स्टडी किया था. स्टिचोमेट्री में हमने डिफरेंट रिलेशनशिप देखी थी. स्टिचोमेट्री में बेसिकली हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए मास और वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्शन का. सो 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स को हमने स्टडी किया था. एक हमारे पास था मास रिलेशनशिप इन विच वी आर यूजिंग मास ऑफ रिएक्टेंट टू कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोडक्ट, और वाइस वर्सा कि अगर प्रोडक्ट का मास गिवन है तो आप रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मासेस कैलकुलेट किए थे फर्स्ट, एंड देन हमने जो हमारे गिवन मासेस होते थे उसके लिए कैलकुलेशंस की थी. इसके अलावा हमने मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ा था जहाँ पर आप जो है वो गिवन मास से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट का. तो यहाँ आपके पास 2 स्टेप्स में आपके पास ये कैलकुलेशंस कंप्लीट की थी हमने. एक हमने ये देखा था कि आपके पास मास से जो है वो आप पहले मास निकाल रहे थे एंड जो मास आपके पास रहते थे उससे आप जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में कैलकुलेटेड मास से वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना हमने बताया था. उसके लिए फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे कि जो भी कैलकुलेटेड मास आपका आप कैलकुलेट जो हो रहा था उसको मल्टीप्लाई कर देते 22.4 dm³ से और डिवाइड करवा देते थे मॉलिक्यूलर मास से, तो आपके पास वॉल्यूम जो है वो इस तरीके से फाइंड आउट हो जाता है. इसके अलावा हमने वॉल्यूम रिलेशनशिप स्टडी किया था जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ गिवन कंपाउंड से रिक्वायर्ड का वॉल्यूम कैलकुलेट किया था. सिंपल हमने जो है वो यूनिट मेथड यूज़ करते हुए मोल मेथड यूज़ करते हुए ये कैलकुलेशंस की थी जिसमें हमने वॉल्यूम से वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे थे.
ओके इसके अलावा हमने एम्पेरिकल फार्मूला स्टडी किया था और उसकी प्रॉब्लम्स स्टडी की थी कि किस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का डेटा से जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली द फार्मूला विच गिव्स अ सिंपल रेशियो और रिलेटिव नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ सिंपल फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सो एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करना था और उससे जो है वो हम एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हमने स्टडी की थी वो थी मॉलिक्यूलर फार्मूला विच इज बेसिकली द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। द फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप जो किसी भी कंपाउंड में मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना हो किसी भी कंपाउंड का तो उसके लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, एम्पेरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हम एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, देन हम n फाइंड आउट करते हैं बाय डिवाइडिंग द मॉलिक्यूलर मास विद एम्पेरिकल फार्मूला मास, और फिर हमारे पास जो नंबर आता है उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने स्टडी किया था। So limiting reactant is basically the reactant which gives least amount of product is called limiting reactant. Basically in a polyreactant reaction the limiting reactant is that which gives the least amount of product and after the consumption of which the reaction stops. So वो limiting reactant कहलाता है। आपके पास कोई भी रिएक्शन है जिसमें आप मल्टीपल रिएक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनमें से अगर कोई एक रिएक्टेंट ख़त्म हो जाए तो ऑब्वियसली फिर रिएक्शन आगे नहीं प्रोसीड करेगा। तो वो रिएक्टेंट जो कि सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, सबसे पहले वैनिश हो रहा है या फिनिश हो रहा है, वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। तो इससे रिलेटेड भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टडी किए थे और वो किस तरह से थे, मास रिलेशनशिप को आप यूज़ करते हुए जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर रहे थे कि तमाम रिएक्टेंट्स में से सबसे लेस मास जो प्रोडक्ट का दे रहा था उसको आप कहते हैं कि ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बिकॉज वही जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो जितना अमाउंट देगा प्रोडक्ट का उतना ही बनेगा, उसके आगे मजीद प्रोडक्ट नहीं बन सकती। तो सबसे लीस्ट अमाउंट जो भी प्रोडक्ट दे की आ रही होती है जिस रिएक्टेंट से भी हम उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कह देते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। इसमें हमने ये टॉपिक्स पढ़े थे और इन टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो देखी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर चैप्टर नंबर 2 के हवाले से जो है वो हम रिविजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।